Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 4. We are going to start unit 6. Its title is Female Education. My dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit, and let's have a look on that, and after that I'll explain what the unit is all about. So in first lecture, under the title of grammar, we'll learn about articles and homophones, and we'll cover the SLO to choose between a, an and the before words that start with mute consonant letters. Locate, identify, differentiate between and use some simple pairs of words including homophones. These are our SLOs. In lecture 2, under pronunciation skills, we learn about multisyllable words, and we'll cover the SLO to tell how many syllables each word has and use a dictionary to find out how words are divided into syllables. Lecture 3, we'll start reading and understanding the text, and we'll cover the SLO to locate specific information to answer short questions and copy and take dictation of words studied in class. Lecture 4 will complete reading and comprehension of this unit, and we'll cover the SLO to locate specific information to answer short questions and use appropriate vocabulary and tenses to write a simple paragraph. Lecture 5, under the title of Read, we'll read and understand bar graph, and we'll cover the SLO to read to compare information given in a bar graph. Lecture 6, under the title of Listening and Speaking, we'll learn how to agree or disagree politely. And we'll cover the SLO to demonstrate conventions and dynamics of oral interactions in group to agree or disagree politely. Lecture 7, under the title of Writing, we'll learn to write an invitation, and we'll cover the SLO to write short informal invitations to friends, family members, and teachers to demonstrate the use of following conventions: purpose, date and time, venue, name of addressee, and sender. Yes, my dear students and my fellow teachers, this is the SLO based lecture division of this unit. Now let's understand what this unit is all about. The title of this unit is Female Education, and its theme is Gender Equality and Equity, Importance of Female Education. Yes, my dear children, इस टाइटल से और थीम से क्या बात समझ आती है आपको? फीमेल एजुकेशन, बेसिकली बेटा जब हम एजुकेशन यानी तालीम की बात करते हैं तो ये तो हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है. यही इस यूनिट का थीम है, जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी. मीन्स हमें जब बात आती है इस तरह की एजुकेशन, फूड, शेल्टर जैसी चीज़ की, तो ये तो इंसान की ज़रूरत है. इसमें मेल और फीमेल का फ़र्क हम क्यों करें, राइट? और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इससे किस तरह फ़र्क पड़ता है. इस यूनिट में हम इस चीज़ को देखते हैं. एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड, वेदर इट्स अ बॉय और गर्ल. ये बेसिक बात है बेटा, लड़का है या लड़की है, इल्म हासिल करना सबके लिए ज़रूरी है. और आज के दौर में तो बेटा इस तरह से है कि जैसे खाना खाना आपके लिए ज़रूरी है, इसी तरह इल्म हासिल करना ज़रूरी है. बिकॉज़ हर दौर में आपको सर्वाइव करने के लिए जो बेसिक नीड्स चाहिए होती हैं, आज के दौर में इल्म उनमें से एक है, right? Nowadays, female education is considered a prerequisite for the progress of a nation. No country can make progress without female education. अगर ख़वातीन पढ़ी लिखी नहीं है तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता. कैसे? Boys and girls are equal member of a society. Not only boys but also girls should get education to build a healthy community. A mother is first teacher of a child. माँ सबसे पहली उस्ताद है अपने बच्चे की. अब वो माँ अगर पढ़ी लिखी है, तालीम याफ्ता है, तो उसका शऊर का जो लेवल है वो डिफरेंट होगा, और वो उसी तरीके से अपने बच्चे की परवरिश करेगी. इसलिए जो आज की बच्ची है, जो कल की माँ है, उसके लिए इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है. और बेटा बॉयज़ के लिए भी दिस इज़ व्हाट, जो इल्म है, जो एजुकेशन है, वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. गर्ल्स जब एजुकेटेड होती हैं तो वो सोसाइटी में किस तरह से पार्टिसिपेट करती हैं, ये हम देख रहे हैं, राइट? बॉयज़ भी डेफिनेटली पार्टिसिपेट करते हैं.
It is necessary to educate the mother so that her child may grow as an active individual in the society. If we educate one woman, we educate the whole family. By educating a boy, we educate one person. As Napoleon said, give me an educated mother, I shall give you an educated nation. ये है बात. जब हम यहाँ पर जो कंटेंट है, एक बॉय को एजुकेट करते हैं तो वो एक पर्सन होता है, लेकिन जब हम एक गर्ल को एजुकेट करते हैं तो वो पूरी फैमिली, क्योंकि कल को जब उसने अपने बच्चों को संभालना है तो एक एजुकेटेड मदर वो एजुकेशन अपने बच्चों में ट्रांसफॉर्म करती है, तो इस तरह से वो पूरी फैमिली एजुकेटेड हो जाती है. और नेपोलियन ने आज से कई साल पहले ये बात कही थी कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दें, मैं आप लोगों को पढ़ी लिखी सोसाइटी दूंगा. इस तरह से एक फीमेल की एजुकेशन सोसाइटी में काम करती है, रोल अदा करती है. फीमेल्स डू देयर बेस्ट नॉट ओनली एज मदर्स बट ऑल्सो एज नर्सेज, टीचर्स, डॉक्टर्स, हेल्थ विजिटर्स एंड सुपरवाइजर्स. बेटा ये रिसर्च कहती है कि जो फीमेल्स होती हैं दे आर बीइंग नर्सेज, टीचर्स, डॉक्टर्स, हेल्थ विजिटर्स और सुपरवाइजर्स, वो बहुत अच्छा काम करती हैं. एन एजुकेटेड फीमेल कैन बिकम अ हेल्पिंग हैंड फॉर हर फैमिली. ये इसके समझे कि एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि अगर वो प्रोफेशनल बन जाती हैं तो उनको फैमिली में हेल्प भी हो जाती है इन फाइनेंस. ओके, दे कैन अर्न मनी. वो जो अपनी सर्विसेज सोसाइटी को दे रही हैं उससे उनकी फैमिली में मनी भी आती है. द मेजर रीजन to educate the females is that education is their fundamental right according to our religion. हमारा मजहब ये कहता है कि इल्म हासिल करना हर एक पे फर्ज है. ये नहीं कहता कि सिर्फ लड़कों पे फर्ज है या सिर्फ लड़कियों पे. वो हर एक का मतलब है everyone should get education. Islam has given the right of getting education to everybody regardless of gender. And if we stop the females from acquiring education, we go against the teaching of Islam. Pakistan is a country in which 50.8 यानी 50.8% फीमेल्स है. ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द फीमेल्स. अब 50% का क्या मतलब होता है? हाफ, है ना. किसी भी चीज़ का 50% का मतलब है हाफ, लेकिन ये 50.8 है यानी हाफ से भी कुछ ज़्यादा. अब अगर हम उस हाफ पॉपुलेशन को एजुकेटेड नहीं करते तो इसका मतलब है हम अपने मुल्क की आधी आबादी यानी क्योंकि आधी आबादी फीमेल्स पे है और अगर वो एजुकेट नहीं हो रही तो आधी आबादी एजुकेट हो रही है और आधी से ज़्यादा एजुकेट नहीं हो रही. ये है इसकी कैलकुलेशन. इफ़ वी कीप अ मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन अनएजुकेटेड वी कैन नॉट मेक प्रोग्रेस. सम पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड द एजुकेशनल एक्सपेंसेस ऑफ बोथ सन्स एंड डॉटर्स. ये एक बड़ा मसला है बेटा कि वो कहते हैं क्योंकि बेटा और बेटी दोनों के हम एक्सपेंस नहीं अफोर्ड कर सकते एंड दे कंसिडर देयर डॉटर्स एजुकेशनल एक्सपेंसेस एंड एक्स्ट्रा बर्डन. उनको लगता है कि ये बच्ची की जो तालीम है इस पे तो पैसा खर्च करना फजूल है. Therefore, they prefer to educate their sons only because they think sons can be a great help in future. ये सोच हमें बदलना होगी. बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बैठे ये एजुकेशनल लेक्चर सुन रहे हैं तो यू शुड से थैंक्स टू योर पेरेंट्स जिन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी. तो हमें देखिए बेटा और बेटी दोनों ही माँ बाप के लिए इंपॉर्टेंट है. दोनों का काम माँ बाप की खिदमत करना है. तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि बेटा पढ़ेगा तो हमारी हेल्प करेगा और बेटी पढ़ेगी तो क्या हेल्प नहीं करेगी? वो भी तो करेगी. दिस इज व्हाट द बेसिक थिंग इज. Female education is compulsory for the progress of a nation. Only education can make women aware of their rights and duties. It is the need of the hour to give education to everybody. Focus should be on female education so that Pakistan can also be counted as the developed nation in the world. और देखिए हम सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक नहीं सोच सकते क्योंकि हमारी ज़ात के साथ हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क, हमारी नेशन जुड़ी हुई है. तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी ज़ात नहीं होती बेटा. हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें हमारा मज़हब भी सिखाता है कि आपके ऊपर आपके ख़ानदान की, आपकी फैमिली की जिम्मेदारी है और आपके मुल्क की जिम्मेदारी है. तो आपने सिर्फ एक लिमिटेड साइकिल तक नहीं सोचना, आपकी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए. और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें इससे भी आगे सोचना है कि हम अपनी मुस्लिम उम्मा का एक हिस्सा हैं. तो हमें एजुकेशन हासिल करनी है अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए और तमाम मुस्लिम उम्मा को सर्व करने के लिए. ठीक है. और
डिस्पायर ऑफ दिस थिंग कि एक लड़का है या लड़की है, लड़के ने भी पढ़ना है और मुल्क की खिदमत करनी है, लड़की ने भी पढ़ना है और अपनी फैमिली, अपने मुल्क और पूरी मुस्लिम उम्मा की खिदमत करनी है। ठीक है, ये देखें हमारे मजहब ने हमें कितनी खूबसूरती से ये बात बताई है। सो ओनली दोज ऑफ हिज सर्वेंट्स हु हैव नॉलेज, यू सी, और क्या, ऑफ दीज रियलिटीज विच इज अ विजन एंड आउटलुक, फियर हिम। इल्म से हमें अल्लाह का भी पता चलता है, अल्लाह का मार्फा भी तो एक इल्म है। श्योरली अल्लाह इज ऑलमाइटी मोस्ट फॉरगिविंग। तो बेटा हमने अल्लाह सुब्हान व तआला इल्म ऐसा हासिल करना है जो हमें अल्लाह से जोड़े। हमने दुनिया के इल्म के थ्रू भी अपने रब से जुड़ना है और अपने दीन की खिदमत करनी है। ठीक है, और ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं लड़का हूँ तो आई कैन डू वेल। लड़कियाँ भी बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर सकती हैं, बस हमने ये याद रखना है कि लड़का है तो लड़कों के तरीके से चलेगा और लड़कियाँ हैं तो लड़कियों के तरीके से। ठीक है, ये आज के हमारा जो यूनिट है उसकी सारी डिटेल है। कल से इंशाल्लाह हम इसके ग्रामर के पोर्शन से अपने लेक्चर्स का स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। Till tomorrow, take very good care of yourself and the people around you. Thank you and Allah Hafiz.